السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ میڈیا ایکریڈیٹیشن قوانین 2025 میں ترمیم، خواتین کو 33% کوٹا لازمی، تلنگانہ حکومت کا بڑا فیصلہ۔ تلنگانہ حکومت نے میڈیا ایکریڈیٹیشن قوانین 2025 میں کئی اہم ترمیمات کرتے ہوئے تازہ ترین جیو نمبر 103 جاری کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان ترمیمات کا بنیادی مقصد ایکریڈیٹیشن کی تقسیم میں خواتین صحافیوں کو ترجیح دینا اور ضابطے کو مضبوط اور مزید جامع بنانا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ نئے احکامات کے مطابق خواتین کے لیے 33% کوٹا ہوگا۔ مردم شماری کے فوری بعد حلقوں کی نئی حد بندی کا کام شروع کیا جائے گا، ان باتوں کا اظہار ڈاکٹر لکشمن نے کیا۔ BJP OBC مورچہ کے قومی صدر اور رکن پارلیمنٹ لکشمن نے ملک میں جلد شروع ہونے والی مردم شماری کے عمل پر اہم تبصرہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ مردم شماری کے عمل میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اور اسے محض 6 ماہ کے عرصے میں مکمل کیا جانے کا امکان ہے۔ ڈاکٹر لکشمن نے اعتماد ظاہر کیا کہ مردم شماری کے فوری بعد حلقوں کی نئی حد بندی کا کام شروع کیا جائے گا اور یہ پورا عمل اگلے عام انتخابات سے پہلے مکمل ہو جائے گا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے میں 77واں یوم جمہوریہ، ریکارڈ آمدنی اور ترقیاتی سنگ میل کا جشن۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے زیر اہتمام 77ویں یوم جمہوریہ کی تقریب ریلوے اسپورٹس کمپلیکس گراؤنڈ سکندرآباد میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر حب الوطنی کے جوش و خروش کے ساتھ ساتھ ریلوے کی ریکارڈ توڑ کامیابیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ جنرل مینیجر سنجے کمار شریواستو نے قومی پرچم لہرایا اور ریلوے پروٹیکشن فورس کے دستوں سے سلامی لی۔ تلنگانہ ریاست میں گاڑیوں پر پریس لکھنے کے معاملے میں ریاستی محکمہ اطلاعات و عوامی رابطے نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ اب سے صرف وہی صحافی جن کے پاس حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایکریڈیٹیشن کارڈز ہوں کہ اپنی گاڑیوں پر پریس لکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سرکاری احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ سینٹرل موٹر وہیکل ایکٹ 1989 کے مطابق بغیر اجازت گاڑیوں یا رجسٹریشن نمبر پلیٹس پر پریس کا لفظ استعمال کرنا قانونی جرم ہے۔ حالیہ دنوں میں ایسی شکایت موصول ہو رہی تھی کہ کئی افراد غلط طریقوں سے اور خانگی اداروں کے شناختی کارڈز کے ذریعے اس لوگو کا استعمال کر رہے ہیں، جس کے پیش نظر حکومت نے یہ اقدام کیا ہے۔ محکمہ اطلاعات کے کمشنر کی جانب سے جاری کردہ میمو کے مطابق ریاست بھر کے تمام ضلعی عوامی رابطہ افسران DPROز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان قواعد پر سختی سے عمل درآمد کرائیں۔ جن افراد کے پاس حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایکریڈیٹیشن کارڈز نہیں ہیں، انہیں فوری طور پر اپنی گاڑیوں سے پریس لوگو ہٹانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ فی الحال کئی میڈیا اداروں میں کام کرنے والے صحافی اپنے اداروں کی جانب سے دیے گئے ID کارڈز کی بنیاد پر گاڑیوں پر پریس سٹیکرز استعمال کر رہے۔ تاہم تازہ احکامات کے بعد بغیر ایکریڈیٹیشن کے ایسے تمام افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ نقلی صحافیوں پر قابو پانے اور اصل صحافیوں کو باقاعدہ شناخت فراہم کرنے کے مقصد سے لیا ہے۔ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں پر محکمہ ٹرانسپورٹ اور پولیس کے ذریعے جرمانے بھی عائد کیے جا سکتے ہیں۔ تلنگانہ یوم جمہوریہ کی تقریب، جھنڈا لہراتے وقت کھمبا ٹوٹ کر وزیر ویکٹی سری ہری کے قریب گر پڑا۔ یوم جمہوریہ کی تقریب کے دوران تلنگانہ کے وزیر ویکٹی سری ہری ایک بڑے حادثے میں بال بچ گئے۔ یہ واقعہ ضلع نارائن پیٹ کے مقتل تحصیلدار دفتر میں پیش آیا، جہاں وزیر موصوف قومی پرچم لہرانے کے لیے پہنچے تھے۔ تفصیلات کے مطابق جب وزیر سری ہری ہزاروں طلباء، حکام اور عوام کی موجودگی میں پرچم کشائی کے لیے رسی کھینچ رہے تھے تو دباؤ کی وجہ سے جھنڈے کا کھمبا اچانک درمیان سے ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ دہلی ہوائی اڈے پر نافذ نوٹم کی وجہ سے سری نگر ہوائی اڈے پر آنے اور جانے والی 5 پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ سری نگر ایئرپورٹ حکام نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے ذریعے جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا، دہلی ہوائی اڈے پر نوٹم نافذ ہونے کی وجہ سے سری نگر ہوائی اڈے سے آنے والی 5 پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ حکام نے مسافروں سے اپیل کی کہ وہ ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہونے سے قبل اپنی ایئر لائن سے پرواز کی تازہ صورتحال کی تصدیق کریں۔ انہوں نے مسافروں سے اس وجہ سے ہونے والی زحمت پر بھی معذرت کا اظہار کیا۔
हुकूमत ने पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इस साल 5 लोगों को पद्म भूषण, 13 को पद्म भूषण और 114 को पद्म श्री से नवाजा जा रहा। फिल्मी अदाकार धर्मेंद्र को पद्म भूषण बाद अज मर्ग मिला, जबकि शेबू सूरियन को पद्म भूषण बाद अज मर्ग मिला। वो एक ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने झारखंड रियासत का दर्जा हासिल करने की तहरीक में कुलीदी किरदार अदा किया। इसके अलावा महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को भी पद्म भूषण से नवाजा गया। इंतखाबी रियासत केरला से 8, तमिलनाडु से 13, बंगाल से 11 और आसाम से 5 लोगों को पद्म अवार्ड से नवाजा गया। मजीद बराए उत्तर प्रदेश से 11 और महाराष्ट्र से 16 को पद्म अवार्ड मिले हैं। अदाकार धर्मेंद्र को फन के लिए पद्म भूषण और वी.एस. अच्युतानंदन को समाजी कामों के लिए बाद अज मर्ग पद्म भूषण से नवाजा गया। इनके अलावा केरला के के.टी. थॉमस को समाजी काम के लिए पद्म भूषण और अदब और तालीम के लिए पी. नारायणन को नवाजा गया, जबकि एन. राजम को आर्ट के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया। 2024 के सियासी बहरान और बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे से मुत्तल्लिक़ अमेरिका से सिफारती रिकॉर्डिंग के लीक होने ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। इस लीक के बाद अवामी लीग ने अमेरिका के किरदार पर सवालात उठा दिए। बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर तालीम मुहिबुल हसन चौधरी ने एक हालिया तकरीब में कहा कि ये ऑडियो अवामी लीग के देरीना बात को साबित करती है कि शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइजिंग अमल नहीं था। गुज़िश्ता सालों में बांग्लादेश और नेपाल में हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। फ्रांस में भी इसी तरह की कोशिशें जोर पकड़ रही थी, लेकिन नाकाम रही। इख्तिदार की इन तमाम तब्दीलियों में एक मुश्तरका नाम अमेरिका है। जिन ममालिक में हुकूमतों का तख्ता उलट दिया गया और बड़े पैमाने पर तशद्दुद या इनकलाब देखने में आया, मुसलसल ये दावा किया जा रहा था कि ऐसा अमेरिका के कहने पर किया गया, हालांकि इसका कोई सरकारी सबूत नहीं। अब बांग्लादेश के हवाले से अमेरिकी सिफारती रिकॉर्डिंग लीक होने से वाशिंगटन नए इल्जामात के मरकज में है। एक बड़े रोजनामा में शाये होने वाली रिपोर्ट में इस रिकॉर्डिंग का हवाला दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस रिकॉर्डिंग में एक सीनियर अमेरिकी सिफारतकार से बातचीत हो रही है, और जो इस वक्त बांग्लादेश में इस्लामी सियासी क़ुव्वतों के साथ उनकी शमूलियत और हसीना के बाद के दौर में मुल्क की रौश का अंदाजा लगाने के लिए इन ताकतों से बात कर रहा। कर्नल सोफिया कुरैशी हिंदुस्तानी फौज के एक ऑफिसर जिन्होंने दुनिया को हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया था, उनको इस साल यौम जमहूरिया पर एजाज से नवाजा किया। सदर की मंजूरी के बाद हुकूमत ने कर्नल सोफिया कुरैशी को विशिष्ट सेवा मेडल देने का ऐलान किया। जब पहलगाम दहशत गर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को तबाह करने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही थी, तो कर्नल सोफिया कुरैशी और हिंदुस्तानी फजाइया के विंग कमांडर व्योमिका सिंह को कमांड सौंपी गई थी। उन्होंने पड़ोसी मुल्क के झूठ को बेनकाब किया और ऑपरेशन का मकसद दुनिया के सामने जाहिर किया। कर्नल सोफिया कुरैशी सबसे पहले उस वक्त नुमाया हुई जब उन्होंने एक कसीरुल कौमी फौजी मश्क में हिंदुस्तानी दस्ते की क़ियादत की, और ऐसा करने वाली हिंदुस्तानी फौज की पहली खातून ऑफिसर बन गई। वडोदरा गुजरात की रहने वाली सोफिया कुरैशी 1981 में पैदा हुई। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। सोफिया ने 1999 में हिंदुस्तानी फौज में शमूलियत इख्तियार की। 2006 में उन्होंने अफ्रीकी मुल्क कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में फौजी मुबस्सिर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। पंजाब की सरहद पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उनकी खिदमत पर उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की तरफ से एक तारीफी खत मिला। तेलंगाना रियासत कैदियों की बहाली और बहबूद में मुल्क में अव्वल नंबर पर। सौम्या मिश्रा ने इन बातों का इजहार किया। तेलंगाना की डायरेक्टर जनरल महबूबा सौम्या मिश्रा ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए महकमे की सालाना कामयाबियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान घरेलू जरूरियात की बुनियाद पर 301 कैदियों को पैरोल दी गई, जबकि अच्छे चाल चलन की बुनियाद पर 218 कैदियों को आर्जी रिहाई की रियायत दी गई। उन्होंने कहा कि रियासत और जिले के कानूनी खिदमात के हुकाम के ताउन से 6573 कैदियों ने कानूनी इमदाद हासिल की, जिसके नतीजे में 3634 कैदी रिहा हुए। PACL लिमिटेड और इससे वाबस्ता इदारों के जरिए चलाई गई इज्तिमाई सरमायाकारी स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
1986.48 करोड़ रुपए मालियत की 37 गैर मनकुला जायदादें आर्जी तौर पर जब्त कर ली हैं। ये कार्रवाई ईडी के दिल्ली जोनल दफ्तर 2 की जानिब से की गई, जो PMLA 2002 के तहत अंजाम दी गई। जब्त शुदा जायदादें पंजाब के लुधियाना और राजस्थान के जयपुर में वाक़ है। ईडी ने जारी करदा प्रेस नोट में इस कार्रवाई की तफसीलात फराहम की। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई CBI नई दिल्ली की जानिब से दर्ज FIR की बुनियाद पर की गई, जिसमें भारतीय ताज़रात हिंद 1860 के दफात 120B और 420 के तहत मुकदमा दर्ज है। इन दफात के तहत मुजरिमाना साजिश और धोखाधड़ी के इल्जामात आयद किए गए थे। ईडी ने इसी FIR की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू की, जिनमें बड़े पैमाने पर सरमायाकारों के साथ फरेब का इंकशाफ हुआ। तहकीकात में ये बात सामने आई कि PACL और इससे जुड़ी कंपनियों ने गैर कानूनी इज्तिमाई सरमायाकारी स्कीम के जरिए मुल्क भर के लाखों अफराद से 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा की। हिंदुस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ मुजव्वज़ा आज़ादी तिजारती मुआहदे के तहत यूरोप से दरामद होने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर भारी दरामदी ड्यूटी में नुमायां कमी की तैयारी कर रहा, जिसके नतीजे में वोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और BMW जैसी मारूफ यूरोपीय कंपनियों की गाड़ियां हिंदुस्तानी सार्फिन के लिए निस्बतन सस्ती हो सकती हैं। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ये ऐलान आइंदा चंद दिनों में मुतवक्किल है, ताहम मुज़ाकरात अभी खुफिया मरहले में हैं और आखिरी लम्हात में तब्दीली का इम्कान भी मौजूद है। मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत 15,000 यूरो से ज़ायद कीमत वाली महदूद तादाद में यूरोपीय मुसाफिर गाड़ियों पर दरआमदी ड्यूटी मौजूदा बुलंद तरीन सतह, जो बाज़ मॉडल्स पर 110% तक है, कम करके इब्तदाई तौर पर 40% तक लाने की तजवीज़ है। बादज़ा चंद बरसों में इस ड्यूटी को मजीद कम करके तकरीबन 10% तक लाया जा सकता है, जिससे यूरोपीय गाड़ी साज इदारों को हिंदुस्तानी मंडी तक रसाई में आसानी होगी। हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ये तिजारती मुआहदा कई बरसों से ज़ेर बहस है और दोनों फरीक इसे एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देख रहे हैं। हुकाम के मुताबिक इस मुआहदे से दो तरफा तिजारत में इजाफा होगा और हिंदुस्तानी बरामदात खुसूसन टेक्सटाइल और जेवरात को फ़ायदा पहुँचेगा, जिन्हें हालिया अरसे में अमरीकी महसूलात का सामना रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।